Started, man. Okay. So thank you very much everyone. So we are taking FAQs on employer-employee today. First question of this FAQ is: can we sell employer-employee policy to a sole proprietorship firm? The answer is yes. We can very well sell employer-employee policy to a sole proprietorship firm. We can also sell to a partnership firm, LLP, private limited company, public limited companies, and a trust as well. The next question which is there is: can a proprietor be a life to be insured of an employer-employee policy taken by a proprietorship firm? Answer to that is no, because a proprietor is a owner of this proprietorship firm, so he cannot be an employee. Proprietor is the owner, इसके वजह से वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता. यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकता. That's the reason proprietor himself cannot be a life to be insured, but employees of proprietorship firm, maybe his family members, wife, son, daughter, brother, sister, or any other outside employee, they can become a life to be insured in a proprietorship firm where proprietorship firm is taking an employer-employee policy. Right? My next question, third question on the screen is: can a director be a life to be insured of an employer-employee policy taken by a private or public limited company? क्या एक डायरेक्टर लाइफ टू बी इंश्योर्ड हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी का जो पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेती है? चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो. क्या एक डायरेक्टर लाइफ टू बी इंश्योर्ड बन सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी का? कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी में लाइफ टू बी इंश्योर्ड हो सकता है? Is director eligible to become life to be insured in employer employee policy? Most of the answer coming yes. Some of them are saying no. Some of them saying if he is drawing salary. I saw one answer. Yes, he is employee if he draws salary. Okay. So I can see most of them are saying yes, and some of them are also specifically writing yes if he or she is taking salary. So answer is very correct. Directors are as good as employees, so employer employee relationship can very well maintain here, right? So directors can be a life to be insured of a policy which a private limited or public limited company takes. So answer is yes. Director लाइफ टू बी इंश्योर्ड हो सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी के. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन होगी, so director can definitely take employer employee policy. Okay, now next question इसके related में ही है, इसलिए मैंने ज्यादा explanation नहीं दिया. Next question is related to this: is it necessary that director of a company must draw a salary or remuneration from a company for getting employer employee policy? क्या एक डायरेक्टर को सैलरी और रेम्यूनरेशन लेना कंपलसरी होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी लेने के लिए? ये फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इज इट कंपलसरी दैट डायरेक्टर शुड ड्रॉ सैलरी और रेम्यूनरेशन टू गेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी? सपोज यू आर सीइंग अ कंपनी, आप कॉल पे जा रहे हो और आप कंपनी के डायरेक्टर से मिलते हो. अब आपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम डायरेक्टर को बता दिया. अब डायरेक्टर बता रहा है कि मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, आई डू नॉट ड्रॉ सैलरी. कैन यू गिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी टू दैट डायरेक्टर हु इज नॉट ड्रॉइंग सैलरी, और इज इट कंपलसरी दैट ही शुड ड्रॉ सैलरी? ओके, सो यहाँ पे मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है. सम ऑफ देम आर सेइंग नो, सम ऑफ देम आर सेइंग यस. 50% रिस्पॉन्स है आई सपोज. डायरेक्टर कैन बी प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग तब होगी प्रफुल्ल शाह जी जब वो शेयर होल्डर भी हो. डायरेक्टर को प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती अनलेस वो शेयर होल्डर हो. ओके, सो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में. यस नो 50-50 आंसर है. सो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे डिटेल में करना पड़ेगा. सो ये क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स. यस,
सैलरी या रेम्यूनरेशन लेना कंपलसरी है. इट इज कंपलसरी और मस्ट टू ड्रॉ a remuneration or salary to get an employer-employee policy. Please understand which concept we are pitching. Employer-employee insurance. Employer-employee insurance is applies only when there is an employer-employee relationship. If a director is not drawing a salary, then how can you treat him or her as an employee? Any person who is drawing a salary, then only he can be considered as an employee, right? So that's the reason, whether you give to director or any other employee, drawing of salary is must. Unless a person drawing a salary, he is not drawing any salary, how can you say that he's an employee? You know, you can say Darshan is an employee of Max Life Insurance and I'm drawing a salary from Max Life. You know, I cannot get a life insurance employer-employee policy from for any other company other than Max Life. If Max Life is taking, then I'm eligible because I'm an employee. But I am not drawing salary of any other company, so I am not eligible. Similar way, director has to draw a salary from a company to get employer-employee policy, whether it is a director or any other employee. Drawing of salary is must, because after drawing a salary, there can be a employer-employee relationship that can be established. Okay, so please make note of this. Okay, we are moving to a next question. Is on next page. Okay, a working partner getting remuneration from partnership firm or LLP, be a life insurance, be a life to be insured of an employer-employee policy taken by partnership firm. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ हिंदी में. वर्किंग पार्टनर जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, क्या वो लाइफ टू बी इंश्योर्ड बन सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी जो पार्टनरशिप फर्म लेती है? अ वर्किंग पार्टनर जो रेम्यूनरेशन लेता है, क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी ले सकता है और लाइफ टू बी इंश्योर्ड बन सकता है? बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं. ओके, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं इस आंसर पे. कुछ नो है. मनु कपूर इज सेइंग नो. वेलकम मनु जी ऑन दिस कॉल. बहुत अच्छा. इससे क्या हो रहा है ना दर्शन, पूरी क्लैरिटी मिल रही है. इट्स गिविंग फुल क्लैरिटी बिकॉज यू नो वंस दे आर राइटिंग यस नो, बिकॉज द मोमेंट यू आस्क द पर्सन यस और नो ना, देन दे गिव प्रेशर ऑन देयर ब्रेन कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी टेल इन अ डाउनलोड फॉर्मेट इट इज नॉट सो इफेक्टिव. सो फैंटास्टिक. हमारे सारे वेबिनार्स ना दर्शन, we will always do it in question and answer, and we will keep adding you know new questions every time so that people's clarity gets better. Because I think it is better क्योंकि कस्टमर भी इनको सवाल ही पूछता है. कस्टमर doesn't ask for a presentation, है ना. So presentation तो हम हमेशा से ही समझाते आए हैं सदियों से. For last many you know years we are telling the presentation only, and we will send the PDF also to people. But क्वेश्चन आंसर में आई थिंक दे गेटिंग बेटर क्लैरिटी. मुझे लगता है इनको और अच्छे से समझ में आएगा. फैंटास्टिक. बिल्कुल फ्रेंड, आपको इसको इस तरीके से भी देखना है. जस्ट इमेजिन, ये मैंने आज किया हुआ क्वेश्चन नहीं, आपको इमेजिन करो. इमेजिन योरसेल्फ in front of a customer. Imagine that a person you are meeting is a working partner who is getting a remuneration, and he's asking you, from my partnership firm, can I get the employer-employee policy which you have explained? So imagine you are only on a call, and this prospect, which is a working partner who is getting a remuneration from his partnership firm, he is asking you a question: can I be a life to be insured of the policy which my firm will take? So what you will answer? Okay, most of them are saying yes. So now I will answer this question. Let's unveil the answer. The answer is no, surprisingly. Most of them, Reshma has said yes, but answer is no. Very good, very good. I know. Excellent. You know, that's how the clarity will set in. Go ahead. I was knowing that this answer could be right, wrong for most of them. That's why I have kept a very long explanation for this, because most of the time I get this question and people get confused. Please understand, friend, as I mentioned that in the first question, I am again going back to the first question. Please see the first question. We can give employer-employee policy to sole proprietorship firm, partnership firm, private limited company,
public limited company, trust. It means proposer can be partnership firm, proprietorship firm, life private limited company, or trust. But what about life to be insured? In proprietorship firm, as I mentioned, proprietor cannot be a life to be insured because he is owner. A director of a company is not owner. So that's the reason he can be a life to be insured, right? But only thing is that he should draw a salary. When it comes to a partnership firm, partners, even though they are drawing a salary, but they are the owners of the partnership firm. That's the reason partner of a partnership firm, even though the entities are different, but still as per the IRDA regulation, employer-employee policy cannot be given to a partner of a partnership firm or limited liability partnership. Employees of partnership firm are eligible. Please understand, when I mention we can give employer-employee policy to a partnership firm or proprietorship firm, that means employees of those are eligible, but the proprietor of proprietorship firm or partner of a partnership firm are not eligible. पार्टनरशिप फर्म का जो होता है फ्रेंड एलिजिबल नहीं होता, इवन दो वो सैलरी ड्रॉ करे वो एलिजिबल नहीं होता, पार्टनर एलिजिबल नहीं होता, डायरेक्टर कंपनी का एलिजिबल होता है, राइट? तो तीन थिंग मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता। तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखने हैं फ्रेंड। कौन से तीन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सबसे ज्यादा सेल करते हैं? नंबर वन, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में आप लाइफ टू बी इंश्योर्ड प्रोप्राइटर के अलावा जो भी एम्प्लॉय है उनको बता सकते हो। आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, इन प्रोप्राइटरशिप फर्म यू कैन मेक लाइफ टू बी इंश्योर्ड टू ऑल एम्प्लॉयज अदर देन प्रोप्राइटर। Forget the fact whether he is drawing salary or not. We will not give to a proprietor. Okay. Second, in case of a partnership firm, again, partners cannot be a life to be insured. Even though they are drawing salary, they are working partner. Partner cannot be a life to be insured in partnership firm as well as in LLP. However, employees of partnership firm are eligible. Right? So when you visit partnership firm or proprietorship firm, please let know that a proprietor himself cannot be a life to be insured. His employees can definitely be a life to be insured. When you visit a partnership firm, please understand that a partner himself cannot be a life to be insured. But other employees who are not partners can become a life to be insured. In case of a private limited companies where directors are there, director can be a life to be insured if he or she is drawing the salary, right? So three different types of organization and three different types of person. Proprietorship, there is a proprietor. Proprietorship firm में proprietor होता है जो नहीं ले सकता. Partnership firm में partners होते हैं जो नहीं ले सकते, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर होते हैं वो ले सकते हैं अगर वो सैलरी ले रहे हैं. सिंपल, आपको समझ में आ गया कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है. मोस्ट ऑफ दी टाइम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझने का यही तरीका है, राइट? यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पार्टनर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में पॉलिसी नहीं ले सकता, बट की मैन इंश्योरेंस वो ले सकता है, टर्म प्लान अपने आप पे ले सकता है अंडर की मैन इंश्योरेंस स्कीम, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टनर के नाम पे कुछ नहीं दे सकते. अगर आपको उस पार्टनर को आप मिले हो, उनको आपको पॉलिसी सेल करनी है उनके ही नाम पे, तो आप टर्म इंश्योरेंस उनको दे सकते हो अंडर की मैन इंश्योरेंस. दर्शन, क्या हमने एक दो सवाल मैंने चैट पे देखे कि हैव वी एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हैव वी टोल्ड देम कि वो कैसे काम करती है ब्रीफली? नहीं बताया रेशमा, अच्छा हुआ बता दो ना प्लीज, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए. एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है एज द नेम सजेस्ट्स. सो दर्शन, इस पे थोड़ा और आप बोलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर करिए. बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल है कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए रेशमा. इट इज सिमिलर टू पार्टनरशिप फर्म. ये पार्टनरशिप फर्म जैसे ही होती है, केवल इसमें एक ही फर्क होता है रेशमा, यहाँ पे पार्टनर्स ही होता है पार्टनरशिप फर्म जैसे, लेकिन जैसे नाम आप देख रहे हो एलएलपी, एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सो ऑब्वियसली नेम सजेस्ट करता है कि इसमें जो लायबिलिटी होगी पार्टनर की वो लिमिटेड होती है, राइट? अदरवाइज
इनकम टैक्स के हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं है। जो इनकम टैक्स रूल पार्टनरशिप फर्म को अप्लाई होते हैं वही इनकम टैक्स रूल एलएलपी के लिए अप्लाई होते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका अलग से होता है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। हवेवर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन जो होता है रेशमा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे करना होता है, जो कि एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत आता है, राइट। सो ये डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है लेकिन इसकी फंक्शनलिटी सेम है। इसमें भी पार्टनर्स होते हैं और इनकम टैक्स के रूल दोनों के लिए सेम है। ओनली डिफरेंस यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंस है और लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो यहाँ पे लिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या होता है रेशमा? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है लोगों को। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है इन केस ऑफ एनी लायबिलिटी ऑन अ फर्म विच फर्म कैन नॉट रीपे। मतलब अगर कोई फर्म के ऊपर लायबिलिटी आती है जो पार्टनरशिप फर्म नहीं रिपे करती, तो जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं वो लायबिलिटी चुकाने के लिए। इंडिविजुअल पार्टनर्स आर indemnified for these losses of partnership firm. So ये liability होती है पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनर्स की। However, LLP में liability limited होती है। In LLP, the liability is limited to the amount of capital that is bought by the partner. In case of a LLP, हिंदी में बताऊंगा तो जो पार्टनर है LLP का, जितना पैसा वो कैपिटल के रूप में लाता है उतने तक ही उसकी लायबिलिटी है, इसलिए ये लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो इसको सिंपल तरीके से याद रखना है कि इट इज अ वेरिएंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज सिमिलर टू अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज अ न्यू कंसेप्ट, 2008 में एलएलपी आया हुआ है। बहुत सारे कंपनी जो है इसमें कन्वर्ट भी हो रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट है, राइट। So that was about the limited liability partnership firm. We can give employer-employee policy to LLP. There is no problem. But as I said in this question, partners cannot take or partners cannot be a liability insurance. So partnership firm में आप किसको दोगे पॉलिसी? नो आंसर लिखा है तो रुक नहीं जाना है। नो आंसर किया तो आपको क्या करना है? यहाँ पे हमें बिजनेस करने के लिए जाना है। सो आप एम्प्लॉइज के नाम पे दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पार्टनरशिप फर्म में जो एम्प्लॉइज है उसमें से कोई ना कोई एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स होता है। एनी मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इफ यू फाउंड इज अ फैमिली मेंबर, यू कैन अप्रोच फर्स्ट। इफ इट इज नॉट फैमिली मेंबर एंड अदर एम्प्लॉय तो भी आप दे सकते हो, नॉट नेसेसरी फैमिली मेंबर। में फैमिली मेंबर हमेशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉलिसी जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वो हम इधर ओनर्स को देते हैं, डायरेक्टर्स को देते हैं या फैमिली मेंबर्स को देते हैं जो एम्प्लॉइज है, राइट। ताकि पॉलिसी जो है वो घर वाले जो लोग हैं उनके ही कंट्रोल में रहे, राइट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Is there any limit on number of employees required under employer-employee policy? क्या कोई लिमिट है एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय पॉलिसी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की? अगर है तो आप नंबर मेंशन कीजिए। कोई मिनिमम लिमिट है कि इतने एम्प्लॉय चाहिए? 5 एम्प्लॉय। अच्छा, कोई बोल रहा है 5, मिनिमम 5। गैलेक्सी M12, मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग नो। सुनील कुमार इज सेइंग 20। ओके, लेट्स सी इसका आंसर भी यस होगा या नो होगा। कोई 7 बोल रहा है। आई एम नॉट आस्किंग पार्टनरशिप फर्म का या एलएलपी का नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आई एम आस्किंग कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी देने के लिए क्या कोई कंडीशन है कि इतने ही एम्प्लॉय होने चाहिए मिनिमम कंपनी में, या इतने ही लाइफ टू बी इंश्योर हम बना सकते हैं, या एक भी लाइफ इंश्योर हम बना सकते हो, या मिनिमम 2 बना सकते हो? क्या कोई लिमिट है? ओके, मिनिमम 5, 10 प्लस 6, नो। मोस्ट ऑफ द सेम आर देइंग नो। ओके, सो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। आप अगर कंपनी में जा रहे हो कोई पॉलिसी अप्रोच करने के लिए, तो क्या आप पूछोगे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है?
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी लेने के लिए? नो, देयर इज नो नीड. इवन वन एम्प्लॉय इज इनफ. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए. We have to see that employer employee relationship is maintained. Even one employee is enough, right? So one is the right answer. एक employee होना चाहिए. If there is no employee, then employer employee policy cannot be given, right? So there has to be at least one employee. There is no need that there has to be 2, 3, 7. मैंने देखा 10, 20. कोई जरूरत नहीं है. In a proprietorship firm, having one employee, we can still give employer employee policy, right? We have seen, we have given Reshma one policy where an agent advisor approached to a proprietorship firm, and there was only one employee who was the wife of that proprietor who was drawing salary. We have given the policy. There was no other employee, but still we have given. So even one employee is enough. There is no minimum number of employees required to give employer employee policy. Only thing you have to see that employee is there, he is drawing the salary, right? Okay. Next question: is there any limit on minimum turnover of a company? जो आप पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिट में जा रहे हो, क्या उस कंपनी का मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए तभी आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दे सकते हो? इज देयर एनी लिमिट ऑन टर्नओवर? इफ देयर इज अ लिमिट, प्लीज स्पेसिफाई द लिमिट. यस लिखा है किसी ने. मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग नो. 1 करोड़ का कोई लिमिट लिख रहा है. चंद्रकांता इज सेइंग 1 करोड़. 1 करोड़ के नीचे अगर टर्नओवर है तो हम नहीं दे सकते. तो फिर हमारा मार्केट तो बहुत कम हो जाएगा अगर ये सर्च हो गया तो. 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए. नीरज इज सेइंग. Okay, most of them still saying no. You are visiting a company and do you need to ask a turnover limit? Only profit is a criteria. Some of them is writing profit making company 10 lakh. कोई बोल रहा है. Okay, good. I think most of you answered. So इसका आंसर देख लेते हैं friends. There is no minimum turnover limit. However, important है यहाँ पे profit होना चाहिए. Turnover हम नहीं देखते. यहाँ पे profit होना चाहिए. Company has to be in a profit so that policy can be issued. Our underwriter sees that company has to be in a profit so that they can issue the policy. Right? Turnover का कोई limit नहीं है. No need for any 1 crore, 5 crore. ऐसे कोई turnover की limit नहीं है. But profit has to be there, sufficient profit to make the payment of premium. If company is in loss, you know, even though turnover is good, but company is in loss, we cannot. We means our underwriter will not able to process the case, right? Next question related to this only. Okay, no, this is little different question. We have a related question also related to company's profit. Okay, but the next question right now on the screen is: can term plan be given under employer employee insurance? This is also mostly asked question. Can we give term plan under employer employee insurance? Most of them are saying yes. Few of them are saying no. Term plan can we give under employer employee insurance? Protection plan under employer employee insurance? Protection plan, term plan can be given under employer employee, or only saving plan can be given under employer employee insurance? Okay. Most of them are saying only term plan under employer employee. Some are saying individually, so we can always give Chandra Kanta, but I am asking, can we give term plan in employer employee? Okay, so most of them have said yes, some of them said no. So answer for this is yes, we can very well give term plan which is
nowadays SSPP, which is our plan, term plan available under employer employee. You can very well give that plan. However, there are certain, you can say, Reshma, restriction on SSPP because of system issue. But in long run, or maybe in couple of months only, I can assume that those will be restored, and seamlessly you can give a term plan, which is SSPP under employer employee. Right now, there is a restriction because of system issue. Only we are accepting term plan above 50,000 premium, right, friends? So this is a temporary, a thing. Otherwise, term plans are very much allowed. For a knowledge purpose, you should know term plans are allowed, right? Next question on the next page. Can we give GLIP product under employer-employee policy? This is very interesting question. And after that, I will explain which all products we can give. So can we give GLIP under employer-employee? Guaranteed lifetime income plan under employer-employee. Suppose you are on a call with a customer or director and he liked our GLIP plan and he wants to take from company under employer-employee. Can you give that? Okay, most of them are saying no. Some of them are also saying yes. Okay. Please show last page. Last page पे क्या होगा? अभी से last page क्यों दिखाना चाहिए चंद्रकांत का? कोई बता रहा है? अच्छा, last page, previous page आपको देखना है. Okay, 1 minute के लिए मैं previous page रख देता हूँ. Okay, you can. I will share with this file with all of you. Okay, friends. So don't worry. अगर आपका miss भी हो गया, यहाँ पे फोटो निकालना या देखना, आपको ये फाइल्स मिल जाएगी. You can get it from your LPCs और NRI BDMs. ये सेशन के बाद हम सारों को दे देंगे. अभी इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपके आंसर आपको पता चल जाएगा, right? But after that, after this session, you will definitely get it. आपको ये फाइल आपके हाथ में विद क्वेश्चन एंड आंसर दोनों के रूप में मिल जाएगी. ओके, ये लास्ट पेज पे मैं आ गया. चंद्रकांता मैम, अगर आपको उसके भी पहला पेज चाहिए तो भी मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए रख रहा हूँ. ओके, next let's go to the main question where we can we give GLIP product under employer employee. So let's see the answer for this. No, we cannot give GLIP. GLIP we cannot give under employer employee insurance scheme A. We can give all products other than, please note this fact. आप नोट कर सकते हैं इसको, कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं. पेंशन प्लान छोड़ के, GLIP is a pension plan, so we cannot give. Pension plan, child education plan, cancer insurance plan, MIP and SWP version 4. ये प्लान छोड़ के हम सारे प्लान्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में दे सकते हैं. GLIP क्योंकि पेंशन प्लान है इसलिए नहीं जाएगा. SWP वर्जन 4 पेंशन प्लान इसलिए नहीं जाएगा. चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स आर फॉर डिफरेंट पर्पस, इसके लिए वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में नहीं जा सकते. कैंसर इंश्योरेंस प्लान अगेन इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं जा सकता. MIP हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें प्रपोजर एंड लाइफ टू बी इंश्योर्ड मस्ट बी सेम. यू कैनॉट हैव a form 2 case in employer employee where proposer and life to be insured can be different. That's why company can be a proposer, but company cannot be a life to be insured. A natural person has to be life to be insured. So MIP, that's the reason we cannot give. Otherwise, other traditional plans, whatever we have, SAP, whether it is a SWP or ULIP plans like PWP, Fast Track Super, FWP, all these we can give under employer employee insurance. Whole life super, all term plans on right now we only have one term plan which is SSPP, but all term plans, traditional plans and ULIP plans we can give except pension products and child education and cancer insurance. MIP and SWP version 4, SWP 1, 2, 3 version we can give, but 4 is a joint life pension kind of a product. That's the reason we cannot give.
right? So now you are clear which type of product you can give under employer-employee. So with this question, you are able to answer which type of product you can give, right? You know now which kind of a product you can tell to your life to be insured. Yeah, just note these 3 points, right? Excluding pension products, child education plan, cancer insurance product. MIP and SWP, because of their nature, we cannot give. Rest all products we can give, friends. And Darshan, people are writing in the chat. Are you picking that up also? Somebody's written whole life बिल्कुल दे सकते हैं आप. You can बिल्कुल give दे whole सकते हैं. life. होल लाइफ दे सकते हो. देखो आप दे कौन से नहीं सकते, आप MIP नहीं दे सकते क्योंकि हमारे MIP में प्रपोजल और L2BI सेम होना चाहिए. देन यू कांट गिव जिलिप, यू कांट गिव SWP फोर्थ पे, वो जो हमारा होल लाइफ वेरिएंट है, यू कैन नॉट गिव दैट. यू कांट गिव जिलिप, यू कांट गिव our FGEP you can't give because that's for education purpose, that's a child plan. So FGEP Correct. you can't give, FYPP you can't give. So pension plans you can't give, FGEP you can't give, Shiksha Plus you can't give because these are all children plans. So children plans, pension plans and MIAP. These are the only category of our plans. So GILIP, FYPP, SWP, fourth variant, वो whole life वाला variant. Then our FGEP, Shiksha Plus. These are the only 5 plans. 5 बोले ना हमने. Shiksha Plus, FGEP, FYPP, GILIP, SWP fourth पे and MIAP. So 6 हो गए friends. So remember there are 6 plans. I'll write in the chat also as Darshan covers. 6 plans can't be given. You give anything else. You give LPP, whole life, SAP, ULIP. ULIP के वो दोनों वर्जन दे सकते हो आप, PWP और जो दूसरा वर्जन है अपना क्या बोलते हैं उसको, FWP. So you can give everything else. ULIP, SAP, SWP के all variants you can give. And now we've opened Darshan. You can even tell under employer-employee. पहले हम वो नहीं देते थे ना, नहीं दे रहे थे ना. We were not giving under key man. We were not giving this SSPP. So now that also we are giving. You can explain that to them. And employer-employee will start on Dolphin. Either from the 25th of July or from the 1st of August. That also we will start. Abhi employer-employee we are not able to take on Dolphin. There is another way out if it's a big case. But till such time, Darshan will explain to you that how are we accepting the SSPP cases. Yeah, we can move ahead. Yeah, just explain me, Reshma, what you have explained because Dolphin शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं सिंपल इसमें बता दो दर्शन. सिंपल इसमें बताता हूँ फ्रेंड. टर्म प्लान के लिए थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है हमें सिस्टम के वजह से फ्रेंड्स, नॉट बिकॉज ऑफ द गाइडलाइन और समथिंग. SSPP जो हमारा प्रोडक्ट है वो देने में चैलेंज आ रहा है एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय में भी और की मैन इंश्योरेंस में भी चैलेंज आ रहा था कि हम नहीं दे पा रहे थे. बट अब गुड न्यूज ये है रेशमा कि हम इसको 50,000 के अबव प्रीमियम पे दे सकते हैं, वेदर वे एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय में हो या की मैन में हो. 50,000 के ऊपर अगर प्रीमियम है इसमें SSPP में तो हम दे सकते हैं. हालांकि जैसे अब रेशमा मैम बता रही है मोस्ट प्रोबेबली 25th और 1st ऑफ अगस्त अगर मैं मान के चलूं ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा. आप सारे आपके SSPP प्लान्स वेदर 50,000 से कम प्रीमियम में या ज्यादा प्रीमियम में आप दे पाओगे, क्योंकि हम सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो ये चैलेंज जो है ये चला जाएगा. सो फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि आप केवल टर्म प्लान SSPP है उसके लिए आपको देखना है कि 50,000 के ऊपर का प्रीमियम. बाकी सारे प्रोडक्ट SWP हो या SAP हो या PWP इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बिल्कुल ये दे सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, राइट. की मैन भी हमारा ओपन हो चुका है फ्रेंड SSPP के लिए अगेन, बट मैंने बताया कि 50,000 का यहाँ पे प्रीमियम का रिस्ट्रिक्शन है. ऑल्सो आपको याद रखना है और भी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड लाइफ होना चाहिए और जो प्रोटेक्शन के हमारे रूल्स है मिनिमम मैक्सिमम सम एश्योर्ड के वो भी यहाँ पे अप्लाई होगी. प्रोडक्ट के सारे जो रूल्स है वो तो अप्लाई होते ही है, आप एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय में करो या की मैन में करो. तो 2.5 करोड़ का जो मैक्सिमम है टेम्पररी रखा हुआ वो लिमिट एप्लीकेबल रहेगा. सो होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे वो लिमिट कम हो जाएगा. बट अभी के लिए वो प्रोडक्ट के गाइडलाइन जो है SSPP के ये एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय के जैसे वो इंडिविजुअल का अप्लाई होते हैं सेम दे आर अप्लाइड टू एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय एज वेल, राइट. सो अगेन
to answer this question, which products we can give? All products except the 6 products which Reshma will write in a chat कि कौन से 6 प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते. पेंशन प्रोडक्ट्स, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, कैंसर इंश्योरेंस, MIP, SWP वर्जन 4. I'm writing in the chat. You continue. Yeah. Next, interesting question, Reshma. Who is nominee under employer-employee policy? एम्प्लॉयर पॉलिसी में नॉमिनी कौन होगा? अगर आपको डायरेक्टर है, आप जिसको पिच करे, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा मुझे पॉलिसी तो समझ में आ गई, बट ये बताओ इसमें नॉमिनी कौन होगा पॉलिसी का? हु कैन बी नॉमिनी? Jagjit is saying no nomination. Some are saying company, spouse or children. Some are saying yes, scheme A I am asking. We are only promoting scheme A. So scheme A का ही मैं पूछ रहा हूँ. Employer, director, okay. इसने मेरा एग्जाम्पल को ऊपर से आंसर किया. फैमिली मेंबर कोई लिख रहा है, कोई कंपनी लिख रहा है, एम्प्लॉयर लिख रहा है, कंपनी हेड, ये नॉमिनी होगा. ओके, ओके. फैमिली, ओजस जी बोल रहे हैं फैमिली नॉमिनी होगा. फैमिली, उसके बाद नो नॉमिनेशन. मनीषा इज सेइंग कंपनी इज नॉमिनी. जोसलीना इज सेइंग. ओके, सो आई थिंक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है. कोई बोल रहा है कंपनी होगा. मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग कंपनी और एम्प्लॉयर इज अ प्रपोजर. बट लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर क्या है? फर्स्ट थिंग आपको समझनी है कि कंपनी सॉरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी में कोई नॉमिनेशन नहीं होता. देयर इज नो नॉमिनेशन अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस पॉलिसी. देयर इज अ बेनिफिशियरी एंड बेनिफिशियरी is a company itself. Proposer, payer and beneficiary of employer-employee policy is employer itself. So company जो होती है, जो कंपनी प्रपोजर होती है इस पॉलिसी की, let's say ABC Private Limited, that company itself a proposer, payer and beneficiary of this policy. So role of employee is only is a life to be insured. So employee may be director हो या कोई other employee हो, he is only a life to be insured. Proposer, payer and beneficiary is employee, is company, right? Employer is the beneficiary. There is no nomination, so nomination नहीं होता. Company itself is a beneficiary. Clear? Next, can a company avail loan facility against employer-employee policy? This question also, some of the agent advisor already asked me many a times. Can a company who is taking employer-employee policy can avail loan facility against the policy, employer-employee policy? Please answer. Okay. Some of them are saying yes, no, yes, no, mixed response is there. MWPA में रेशमा ये सिमिलर क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है. MWPA के सामने हमने बताया था कि लोन नहीं ले सकते. अब यही क्वेश्चन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए है. क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी के सामने लोन लिया जा सकता है? पुष्पा सक्सेना सेइंग नो. शशि सेइंग yes, very much confident. सरेंडर का भी बताऊंगा कर सकते हैं कि नहीं. सरेंडर किसने पूछा है? कंपनी कैन टेक a loan or not? Okay, mixed response again, so I have to explain in detail. Yes, loan facility is available to the company. Company can very well take the loan under employer employee policy. MWPA में friends क्यों नहीं loan ले सकते थे? Because MWP is a trust, irrevocable trust where a change in nomination is not allowed. That's the reason loan facility cannot be exercised
under MWPA. But employer-employee policy can surrender, can be assigned, can be taken loan. So कोई problem नहीं है. You can very well take a loan facility against employer-employee insurance policy. Eligible policy रहेगी आपकी. So you can very well take loan against the employer-employee policy. And yes, company takes the loan because 10th question you see proposer, payer and beneficiary. It means owner of this policy is a company. So company can avail this loan facility being the owner of this policy, right? So yes, you can tell your company that yes, in case of any difficult time, you can always go for a loan facility, right? Good. I hope friends, your questions are getting answered. Please make a note of this question. I think रेशमा अगर किसी का जवाब गलत हो जाता है तो आई थिंक आंसर तो वैसे ही याद रह जाता है. सो बिल्कुल बिल्कुल. ओके, सो आई थिंक हमने 11 क्वेश्चन कर लिए और 11 या 12 क्वेश्चन और है. आई होप फ्रेंड्स आप बोर नहीं हो रहे, आपको इंटरेक्टिव लग रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. कैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई पॉलिसी बी गिवन अंडर MWPA एक्ट? ये भी क्वेश्चन मुझे पूछता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है रेशमा, बट सरप्राइजिंगली ये लोग पूछते हैं क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी को MWPA लगा सकते हैं? लेट्स सी द आंसर, क्या आ सकता है. बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं, नेवर लिख रहे हैं. शशांक टी सेइंग यस. Nani Poddar is saying yes. Pawan Bell G is saying no. Reena Desai is saying no. Okay. Yes, yes. यहाँ पे 2-3 बार. सीमा Pradeep is saying yes. Nidhi Grover man is saying no. Jagruti Mehta is saying no. Ravindra Malhotra is saying yes. MWPA can be given to employer-employee policy. अच्छा, टाइटल चेंज नहीं हुआ है. Oh, I'm so sorry. I need to change. Reshma, just allow me 1 minute. I'm sharing again, resharing. Yeah, sure. Thank for the suggestion. क्योंकि मैंने ये slide recently बनाई है, so I may have forgotten changing the title. But आपके लिए question open है. Can we give MWPA under? Can we give MWPA under employer-employee policy? Thank you very much for the suggestion. I have made the changes, Reshma. I am resharing the screen again. Sure. Okay, so answer for this is no. मैं आंसर बता देता हूँ, तब तक मेरी स्क्रीन शेयर होती है. Yes, you cannot give MWPA. Reason simple है. MWPA is a policy which is in which proposer is a married man, right? Employer-employee policy has the employer or company as a proposer. So that's the reason employer-employee policy cannot be given under MWPA. It is very simple question, by the way, but you should know that employer-employee policy proposer is the company. So MWPA Act cannot be attached here. MWPA is possible only when the proposer is a married man, right? So let me share the screen. My file is saving. It is taking a time to save. Okay, meantime, you can ask a question in chat till the time my file is getting saved. Yes, it is ready now. I can share, Reshma. Yeah. Yeah. Just confirm me, Reshma, whether it is visible. Cell stories आ गया.
ओके रेशमा जस्ट कंफर्म करना स्लाइड विजिबल है क्या? हाँ जी स्लाइड शो पे लगा दो बस। हाँ ओके या ओके सो हम कौन से क्वेश्चन पे थे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया। MWPA यू कैन नॉट गिव अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी। कैन HUF टेक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक राजकुमार चौधरी ने पूछा HUF और आपका क्वेश्चन आ गया। Last question he asked was about explain HUF, and next question is about HUF only. So you can answer, Mr. Raj, about this. Can HUF take employer-employee policy? Previous page, friend, हम आपको ये slide share करेंगे, आपको मिल जाएगी. Don't worry about previous page. You will get this slide. अच्छा मेरी स्लाइड शेयर में प्रॉब्लम आ गया क्या? रेशमा नहीं दिख रही है? हाँ अब वो फिर से उस पे स्लाइड शो से अभी हो गया? अब सही है सही। ओके सो प्रीवियस पेज में फ्रेंड फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट डोंट वरी यू विल गेट दिस स्लाइड्स विथ यू. You can take a photo. I am sharing the previous page. The answer question remains, what is the whether HUF can take employer-employee policy? Can HUF take employer-employee policy is the question. This is on this page. If you are visiting a company and later on you know that the status of the company is HUF, company is actually running under the category of HUF, can you give employer-employee policy? Many of them saying no. Many of them saying no. Okay. So can HUF take employer-employee policy? Some of them are saying yes. Okay. So let's see the answer. Yes, HUF is. If HUF is carrying a business, then it is possible that HUF can propose an employer-employee policy on its employees. Employees could be Karta or any other family members, right? Please note that if HUF is running a business, if HUF is carrying a business, then it is possible that HUF can also propose an employer-employee policy. Please understand that we can give employer-employee policy to any business organization. I also mentioned trust in the first question's answer. So any organization which is carrying business. However, it is again important to see that profit has to be there. Unless there is a profit in that business, underwriting issues will come. Right? We will not able to proceed with the policy. So HUF, to answer this question again, HUF can propose the policy if only if he is having a business. If HUF is not carrying any business, there are no employees, then you cannot give. Obviously, you cannot give. There is no employees, so you cannot proceed for that. But important thing to note here is that Karta or the members of HUF can also be employees, and they can also take the HUF policy. If let's assume if the Karta or any other employee, any other member is drawing a salary, that salary proof is there, then we can also give employer-employee policy from HUF and make the Karta or any other member who is drawing salary as a life to be insured, right? Any related question in chart? Explain in Hindi HUF या HUF में बता देता हूँ कि HUF पॉलिसी हम हिंदी में बताता हूँ. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का मीनिंग होता है. HUF का मीनिंग होता है HUF को हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दे सकते हैं. HUF प्रपोज कर सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी अगर HUF बिजनेस कर रहा है तो. HUF का अगर बिजनेस है तो HUF ऑल्सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होता है और उसके एम्प्लॉइज के ऊपर आप ये पॉलिसी दे सकते हो. एम्प्लॉइज इसके कर्ता भी हो सकता है, मेंबर्स भी हो सकता है अगर वो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं.
लेकिन आपको ये याद रखना है एचयूएफ प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए और उसका बिजनेस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. ये सिंपल क्वेश्चन है. अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंपनी गेट्स टैक्स बेनिफिट फॉर द प्रीमियम पेड अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस? कौन से सेक्शन में ये बेनिफिट मिलते हैं? बेनिफिट ऑफ एचयूएफ हम एचयूएफ के सेशन में कभी डिस्कस करेंगे. अनुराग रंजन जी, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एचयूएफ के, मैं बताऊंगा आपको जब हम एचयूएफ का कभी सेशन करेंगे उस वक्त. अभी के लिए क्वेश्चन आपके लिए यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो प्रीमियम कंपनी पे करती है, एम्प्लॉयर पे करता है, वो कौन से सेक्शन इनकम टैक्स के अंतर्गत उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है? दिस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंपनी गेट्स टैक्स बेनिफिट. कोई बोल रहा है 80C, कोई बोल रहा है 37(1), कोई 10(10)D लिख रहा है. मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग 37(1). Okay, few of them are writing 80C. Okay, so ये क्वेश्चन आपके साथ भी हो सकता है फ्रेंड. The director or the owner of the company may ask to you, under which section this employer-employees premium is deducted as expenditure. You have to have the answer. It's a very simple answer. Many a times we explain the benefit section. It is not 80C. It is section 37(1). 80C is only for individual life insurance policy. Please understand the answer for this is section 37(1). Under 37(1) of Income Tax Act. Read with CBDT Circular 762. 762 Circular. CBDT means Central Board of Direct Taxes. So CBDT के Circular 762 में भी ये लिखा हुआ है और इनकम टैक्स के सेक्शन 37(1) में ये आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो प्रीमियम भरते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. राइट. सो यू शुड टेल योर कस्टमर, योर प्रोस्पेक्ट, owner, director that under section 37(1) of income tax you get the tax benefit of the premium amount paid. Right. There is no limit on the amount of premium paid as per the underwriting. Whatever premium is decided, company can get the benefit. We have closed 1 crore cases also. 1 crore entire can be treated as the expenditure under section 37(1). There is no limit, no maximum limit. Whatever is allowed as per the company's underwriting, then we can give that much amount of premium. Right? It is section 37(1). 80C is applicable only for individual life insurance policy and it has a limit of 1,50,000. So employer-employee policy premium is actually expense and it comes under 37(1). 10(10)D applicable होगा क्या? 10(10)D यहाँ पे applicable नहीं होगा. It is again applicable to individual life insurance policy. Next question, friend, is premium paid under employer-employee policy constitutes perquisites in the hands of employees? Answer this question. थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा इसमें. परक्यूजिट क्या होता है मैं हिंदी में बताता हूँ. क्या कंपनी ने भरा हुआ प्रीमियम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी के अंतर्गत एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट कहलाता है क्या? वेदर इट इज अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ अ एम्प्लॉय व्हाटएवर प्रीमियम पेड बाय द कंपनी. Perquisite means it is a taxable component of a salary. जैसे सैलरी में सैलरी होता है, अलाउंसेस होते हैं, वैसे ही परक्यूजिट्स होते हैं. राइट. तो क्या ये परक्यूजिट और पार्ट ऑफ अ सैलरी गिना जाता है जब कंपनी प्रीमियम पे कर रही है? एग्जांपल के तौर में बता एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको. जैसे मानो मैं रेशमा मेहंदीरत्ता, मैंने कंपनी से कोई कॉन्टेस्ट जीता. जैसे मानिए मैंने एक कॉन्टेस्ट में एक लैपटॉप जीता, तो वो लैपटॉप परक्विजिट हो गया. करेक्ट है ना? ये परक्विजिट हो गया लैपटॉप. जब मैंने लैपटॉप जीता ये परक्विजिट हो गया. तो वो आपको पूछ रहे हैं कि प्रीमियम पेड अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट माना जाता है क्या? ये एक एक्स्ट्रा एडिशन, एक एक्स्ट्रा पे आउट माना जाता है क्या? यस या नो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. दिस कम्स वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन द फील्ड.
या डायरेक्टर ही पूछते कि मैं पॉलिसी का प्रीमियम मेरी कंपनी पे कर रही है, बट क्या 5 लाख 10 लाख 20 लाख प्रीमियम कंपनी पे कर रही है, क्या वो मेरे इनकम में जोड़ा जाएगा क्या एज अ परक्यूजिट? ये Correct, क्वेश्चन correct. They हम ask very frequently. It comes. Very good question. ओके, क्या आंसर लग रहा है देखते हैं इसमें। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, देख रहा हूँ, कोई लोग नो लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन अभी भी है रेशमा इन सब क्वेश्चंस के ऊपर। Yes, yes, yes. It's very important. बहुत अच्छा कर रहे हो तुम दर्शन की क्वेश्चन आंसर में थोड़ा दिमाग पे भी जोर पड़ रहा है. They have to think. या अब मेरा काम आसान हो गया है, उन लोग का ही काम बच रहा है, मुझे बस क्वेश्चन रीड करना है। You don't have to, put that much of energy. Very good. या बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे समझाना जरूरी है, वेयर आई विल आंसर इन डिटेल। सो इसका आंसर देख लेते हैं रेशमा। प्रीमियम पेड is not constituted as perquisite in the hands of employee। सिंपल रीजन है इसका रेशमा। इस पॉलिसी का ओनर कौन है मुझे बताओ रेशमा, मैं आपसे पूछता हूँ रेशमा, ओनर कौन है पॉलिसी का? कंपनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कंपनी इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी। मैंने बताया नॉमिनेशन नहीं होता, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? कंपनी है। तो क्यों एम्प्लॉय के परक्विजिट में जोड़ा जाएगा जब एम्प्लॉय एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल से समझाते हैं ना दर्शन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। रेशमा मेहंदीरता इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मैक्स लाइफ, and Max Life decides that let me take a policy of 10 lakh per annum for Reshma Mehendirata's life. So God forbid if Reshma Mehendirata dies, company will get 1 crore. So company is safeguarding its own interest. Okay, so they are not favoring me in any way. So I don't even know at the time of taking the policy whether the assignment will happen, whether they are going to give the policy proceeds to my legal heirs or not. Nothing is clear when you take the policy, right? It's the decision of the employer when they take a policy whether or not they want to give it to the employee on the employee's death, in the sense employee's legal heirs, or it's not even clear whether they will give me the maturity proceeds or the company will keep, because ultimate owner in a employer employee policy, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी में अल्टीमेट ओनर जो है पॉलिसी पे 100% राइट जो है वो सिर्फ कंपनी का होता है, एम्प्लॉयर का होता है। एंड हेंस परक्विजिट्स आर नॉट count are not taxed in the hand of, matlab this is not counted as perquisite. The premium, 10 lakh premium that company paid, Max Life will pay for my life, it's nowhere related to my taxation or my salary, or it is not included in my income. If company gave me a laptop as a contest, Max Life gave me a laptop, it is a perquisite because it's used by Reshma, it is not used by organization, right? So that's why if they give me a laptop, it is my perquisite. But if they are paying a life insurance policy premium, then it is not my perquisite. A laptop is my perquisite. If they give me a washing machine in a contest, it's my perquisite because me and my family will use it, right? I will use it. But in for income tax, for IRDA, the company is safeguarding their own interest. Okay, so this is how it is. Yeah. Also, Reshma, employer-employee policy after assignment or as per transferring, yes, obviously you can, it will be taxed to employee. But before that, it is not considered a perquisite. Yes, most of the time, purpose of this policy is that after certain years, when specifically when we take for employees, the purpose is to give money to the employee ultimately at the end. But before that, technically, as Reshma also mentioned, owner of this policy is a company. That's the reason it does not form perquisite. After assignment of this policy or after passing on this benefit to employee at the time of maturity, yes, these benefits will be included because at that time actual money will be received, not before that. So at the time of paying premium, no perquisite would be included. मुझे एक और एक बात बता दर्शन, हैव यू एडेड, आगे तुमने ये पॉइंट क्वेश्चन डाला है क्या? जो लोग चैट में पूछ रहे हैं कि व्हाट इफ द एम्प्लॉय लीव्स, हैव यू पुट इट इन द क्वेश्चन? ये मैंने पर्पसफुली इसलिए नहीं डाला रेशमा, तो कवर करते, कोई बात नहीं, कवर कर देते, अभी कर लेते, इसलिए नहीं डाला। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। अरे दर्शन, तुमने ये नया फॉर्मेट 2 दिन पहले ही तो बनाया। आई नो तुम्हें 40-50 क्वेश्चंस और धीरे धीरे करके डालने पड़ेंगे, तो जैसे जैसे आते आप नोट कर लो कि ये नहीं डाला, ये नहीं डाला। नहीं, मैं पर्पस बता रहा हूँ रेशमा, मुझे क्वेश्चन आया था बट मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी हमें किस अप्रोच से सेल करनी चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 15 नाम दिखे थे
टॉप एम्प्लॉइज। आप देखो टिकट साइज, क्या आपको लगता है ये जनरल एम्प्लॉइज के नाम पे होगी पॉलिसी? यस, करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए बाकी एम्प्लॉइज के नाम पे, बट 95% बिजनेस हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रेशमा ऐसे आता है जहां पर डायरेक्टर या कोई फैमिली मेंबर जो सैलरी ड्रॉ करते हैं वही लाइफ टू बी इंश्योर्ड होते हैं, तो वो छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। Correct. So Practically yeah, let's give an example to everyone, Darshan. We should do this in story format so that they understand. So let's say Darshan and I, we both are two friends and we decide to form a company, limited company. So when Darshan and I, we both, form a company, we both are employees if it's a limited company, even if we are chairman, director, anything, we are employee of the company. Okay. So Darshan and I, we both have formed a company where we both are directors. We have taken policies for ourselves. So there is no question of me or Darshan resigning. If we want to resign, we will plan that resignation also. That हम इतने साल company चलाएंगे, फिर हम ये company को बंद कर देंगे. That will also be planned. Secondly, as rightly said by Darshan, 95% of our employer-employee sales is actual owners, people who have the stake in the company. They are not the employees. So you will not find companies like Max Life Insurance or Tata or you will not find IBM, you will not find the best of FMCG companies like Hindustan Lever Limited or Nestle. ये अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी नहीं लेते फ्रेंड्स, बड़ी कंपनीज तो बिल्कुल नहीं लेते। जो हमारे पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सेल आती है ना, दैट्स ऑल अप टू 1000 करोड़ ओनली। फ्रॉम 1 करोड़ टू 1000 करोड़ की जिनकी टर्नओवर होती है ना, वही लोग हमसे पॉलिसी लेते हैं। उससे बड़ी कंपनी अगर होती है ना, तो वो जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है या बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है विच आर लिस्टेड, लाइक नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बिरला, टाटा। तो वो हमसे पॉलिसी ये वाली लेने में इसलिए नहीं इच्छुक होते क्योंकि उनकी पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठती है, उसमें उनके फैसले लिए जाते हैं। सालों साल लगती है ऐसी एक पॉलिसी करने में। इतना पेशेंस शायद हम में होता भी नहीं है। और दूसरा, वो भी सुनने को राजी नहीं होते क्योंकि उनको मालूम है उनके 10-10-15 मैक्स लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मोर देन 15। सो कहाँ 15 डायरेक्टर्स का साइन ऑफ लोगे आप और कहाँ बताते रहोगे? तो इसलिए जो अपनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बिकती है ना, वो सारी 1000 करोड़ एंड बिलो में बिकती है। बहुत रेयर, मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम दर्शन कि जो 5000 करोड़ की कंपनी और उन्होंने हमसे पॉलिसी लिया, मुझे ऐसे नाम भी नहीं मालूम है। जो मैंने अपनी हाथ से पॉलिसी की है या मेरे मेरे नजर में जो पॉलिसीज है, द पॉलिसीज दैट आई नो ऑफ are all 1 crore to 1000 crore. Any one of you who are in the session, you write on the chat, have you seen any big companies like Ashok Leyland employer employee policy, Procter and Gamble employer employee policy that Max में आई हो? आप बताओ मुझे, लिखो चैट पे, मैं भी चेक करती हूँ बैकएंड से ये कौन सी पॉलिसी आई है। नहीं आती है हमारे पास ऐसी पॉलिसी। तो याद रखना, वो एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी जो लेते हैं ना, बहुत मिनिस्क्यूल बिजनेस आता है छोटी कंपनियों में भी, और वो लेंगे तो भी टर्म प्लान लेंगे और सोच के लेंगे कि बंदा ये अगर मर गया तो ही हमें बेनिफिट होगा, तो हम प्लान लेंगे। तो दे विल नॉट टेक प्लान्स लाइक SAP, ULIP फॉर एम्प्लॉयज। तो इसलिए एम्प्लॉय छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो वो खाली टर्म प्लान लेते, जहां ज्यादा नुकसान उनको ना उठाना पड़े। So I think now we can move to the next question, Darshan. I think I've given enough clarity here. Yeah. So बड़ी ऐड कर लो दर्शन, तुम ऐड कर लो ये, क्योंकि लोग पूछते हैं तो उनके FAQs में रहने दो ना, कोई बात नहीं। बिल्कुल, मैं आंसर भी करता हूँ इसका कि एम्प्लॉय छोड़ने पे क्या होता है। आपने आंसर किया इसका? बाय द वे मैं फोन देख रहा था। हाँ कोई नहीं, मैंने पूरा आंसर किया। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। अच्छा, कर दिया आंसर, ओके गुड। हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने इसका ऑलरेडी आंसर हमें चैट पे भी देखते रहना पड़ेगा, एक एक सवाल लेके चैट पे जो आया वो भी बताना है हमको साथ साथ, दर्शन, है ना? So, is section 1010D benefit available to employer-employee policy? क्या मैच्योरिटी पे 1010D बेनिफिट या डेथ पे 1010D बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय पॉलिसी में? जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी में 1010D बेनिफिट होता है, सेम वे क्या एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय पॉलिसी में 1010D बेनिफिट मिलेगा? ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टर पूछ सकता है। मैंने तो सुना है रेशमा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1010D बेनिफिट मिलता है, तो क्या आपकी पॉलिसी में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी में 1010D बेनिफिट मिलेगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो इसका आंसर है फ्रेंड्स नो। आपको जैसे मैंने बताया 80C का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता, सेम वे आपको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलता। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो रिसिप्ट्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, वो बिजनेस इनकम
करके कहलाते हैं. सो ये 1010D का बेनिफिट इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को होता है. Proposer of policy if is individual, then 1010D benefit applicable. Employer employee के लिए 1010D का benefit applicable नहीं होता है. Most of them I think have rightly answered no. Very good. Okay, next question we will go. In case of a death of an employee, who receives the amount and whether amount so received is taxable. Death होने पे employee के वो किसको अमाउंट मिलता है? Who receives the amount, claim amount, and whether this amount is taxable or not. Employer, yes. Company and taxable, not taxable. Some are saying company taxable. Employer, company, beneficiary. But beneficiary कौन है? क्या एम्प्लॉई को मिलेगा? ये एम्प्लॉयर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और टैक्सेबल भी लिख रहे हैं बहुत सारे लोग. तो इसका आंसर मैं बता देता हूं फ्रेंड कि डेथ होने पे एम्प्लॉय का किसको पैसा मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था. तो सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा. सो एम्प्लॉयर रिसीव्स द डेथ क्लेम, राइट. अब टैक्सेबिलिटी के लिए यहाँ पे आंसर मैं करना चाहता हूँ कि यस, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, ऑल रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल टू कंपनी. बट यहाँ पे हम एक तरीका यूज करते हैं एक्स ग्रेशिया का. आप सबको ये सेल्स पिच मालूम होगी जो हम यूज करते हैं एक्स ग्रेशिया की, जो लीगल हेयर्स को हम पैसे पास ऑन करते हैं इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. सो बिकॉज ऑफ दिस, ये एक्सरसाइज किस तरीके से होती है मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. एम्प्लॉयर रिसीव्स द डेथ क्लेम, राइट. ये तो श्योर है कि क्लेम जो है वो एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा. कंपनी इज द ओनर ऑफ दिस पॉलिसी, प्रपोजर ऑफ दिस पॉलिसी, बेनिफिशियरी ऑफ दिस पॉलिसी. सो क्लेम जो है वो कंपनी को ही मिलेगा. बट if company passes on that claim to the legal heirs of the employee who died as a ex gratia in the same financial year, अगर मैं हिंदी में कहूंगा तो उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस साल क्लेम आया उस वक्त कंपनी ने ये पैसा जो एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उसके लीगल हेयर्स को, मतलब उनके वाइफ को या बच्चों को, ये पैसा अगर उसी साल में ट्रांसफर किया, देन this is an expense for the company in the same financial year, right. So income के सामने ये expenses adjust हो गया, कंपनी का liability यहाँ पे न्यूट्रल हो गया. And the amount which is received by the legal heirs, whatever amount received by the legal heirs, it is again not taxable in their hands because of the CBDT circular 573. फ्रेंड्स, ये अगेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑफ इनकम टैक्स का सर्कुलर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ एम्प्लॉय के बाद जो एक्स ग्रेशिया मिलता है फैमिली मेंबर्स को, लीगल हेयर्स को रेदर, वो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता. सो आपको ये सेल्स पिच इस तरीके से बताना है कि इन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ एम्प्लॉय, द क्लेम अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी. However, in the same financial year, company will pass on that money to the legal heirs of the employee, and employee will receive the tax-free money because of the CBDT circular 573, and company also gets the expenditure against the claim amount received. कंपनी को ये खर्चा मिलेगा एक्स ग्रेशिया पेमेंट, और लीगल हेयर्स जो होंगे उनके हाथ में भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ 573 सर्कुलर, राइट. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 18, कैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी बी असाइन्ड बिफोर प्रीमियम पेमेंट टर्म गेट्स ओवर. अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज यूज द चैट बॉक्स. कैन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी बी असाइन्ड बिफोर प्रीमियम पेमेंट टर्म गेट्स ओवर. क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी आप असाइन कर सकते हो प्रीमियम पेमेंट टर्म
खत्म होने से पहले क्या कंपनी असाइन कर सकती है पॉलिसी? यस नो मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, यस नो मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, सो मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्विकली। यस, आप असाइन कभी भी कर सकते हो। देर इज नो नीड दैट बिफोर प्रीमियम, तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था कि बिफोर प्रीमियम पेमेंट टर्म, आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन असाइन दी पॉलिसी। असाइनमेंट करने से पॉलिसी को एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, हमारी मैक्स लाइफ या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रोक नहीं सकती। इफ देर इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, you can very well do the assignment. There is no time limit, even in the first year or last year or in the mid of the policy term. कोई भी साल में आप असाइनमेंट कर सकते हो, स्टार्ट में भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट, हमारी अंडरराइटिंग टीम देखती है कि इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्या, राइट? यू कैन असाइन टू एम्प्लॉय, नो प्रॉब्लम। असाइनमेंट आप एम्प्लॉय को कर सकते हो, और यू कैन असाइन टू the lenders or creditors जिसको आपने लोन दिया है, and it is proved that yes there is an insurable interest, right? So assignment is possible in employer employee policy and assignment can be done at any point of time. But यहाँ पे मैं फ्रेंड्स एक ऐड चीज करना चाहता हूँ। अबोव क्वेश्चन और आंसर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझना है। असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी अब करना प्रैक्टिकली सही नहीं है, और मैं कहूंगा बेनिफिशियल नहीं है। सही नहीं से अच्छा वर्ड यूज करूंगा कि बेनिफिशियल नहीं है। 2013 में असाइनमेंट के रिलेटेड में रूल चेंज हो गए। अर्लियर कैसे होता था रेशमा, मैं बताता हूँ आपको। असाइनमेंट करने के बाद पॉलिसी जो होती थी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के पास जाती थी या डायरेक्टर के पास जाती थी। सो वो डायरेक्टर या एम्प्लॉय यूज टू ट्रीट दैट पॉलिसी एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी, एंड दे यूज टू से दैट we will get the 1010D benefit under the employer-employee policy, which is now assigned to me, right? इस तरीके से लोग सेल्फ स्पीच यूज करते थे, right? But now 2013 में इनकम टैक्स रूल में चेंज आया, जिसमें ये बताया कि असाइनमेंट करने के बाद भी आपकी पॉलिसी में 1010D बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री वाला बेनिफिट है। इसलिए असाइनमेंट करना हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि असाइनमेंट करने के बाद भी कंपनी को टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे ही मैंने असाइनमेंट वर्ड यूज कर लिया, फ्लोटिंग ऑफ क्वेश्चन आगे। चलो मैं क्विकली एक दो क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। अमृत चरबे मैडम का क्वेश्चन है, वंस असाइन इट विल बी इंडिविजुअल पॉलिसी। यस, पॉलिसी तो इंडिविजुअल पॉलिसी हो जाती है अमृत मैम, बट आपको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2013 के अमेंडमेंट इनकम टैक्स की वजह से हुआ है, राइट? प्रेम जिंदाल जी आपका क्वेश्चन है, वंस इट्स असाइन हु विल पे द प्रीमियम। असाइन करने के बाद प्रेम जी इसका प्रीमियम जो है वो एम्प्लॉय खुद पे करेगा, राइट? मनदीप कौर, मैंने ऑलरेडी बताया आपका आंसर। असाइन करने के बाद भी 1010D बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा। ओके, इसने ये पूछा था कि एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, वो हमने आंसर कर दिया दर्शन। आपने ऑलरेडी कर दिया ना, राइट रेशमा? हाँ नहीं, किसी ने ये पूछा था कि एक एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है तो क्या उसकी पॉलिसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। एम्प्लॉय देखो, लाइफ टू बी इंश्योर्ड यहाँ पे जो होगा वो चेंज नहीं होगा आप, क्योंकि लाइफ के ऊपर ही पॉलिसी होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉलिसी को उस एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हो। या तो आप पॉलिसी को बंद कर सकते हो या तो कंटिन्यू रख सकते हो इवन तो एम्प्लॉय इज नॉट देयर, राइट? ये तीनों ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5-6 क्वेश्चन अब बचे हैं। वी विल टेक 10-15 मिनट्स मोर मे बी। आफ्टर दैट अगर कुछ और क्वेश्चन बचते हैं तो वी विल डू दैट। Can a newly established company take employer-employee policy? Again, interesting question. Most of the time I get. न्यू कंपनी है, बिल्कुल अभी इसी साल चालू हुई है, अप्रैल में चालू हुई या मई में चालू हुई है। क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी ले सकती है अपने एम्प्लॉय के लिए या डायरेक्टर के लिए जो सैलरी ले रहे हैं?
आंसर कीजिए फ्रेंड 19 क्वेश्चन का। कैन अ न्यू कंपनी टेक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी? कोई बार बार पूछ रहा है एनजीओ ले सकता है क्या? एनजीओ ले सकता है, ट्रस्ट ले सकता है, एनजीओ नहीं होता है, वो ट्रस्ट होता है फॉर्म उसका एक्चुअल में। ट्रस्ट अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दे सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम उसको नहीं दे सकते। और ट्रस्टीज जो होते हैं उनके नाम पे हम नहीं दे सकते, एम्प्लॉयज के नाम पे हम पॉलिसी दे सकते हैं, एनजीओ के लिए या ट्रस्ट के लिए। राइट, आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। Coming back to 19th question again, can a newly established company take employer-employee policy on life of its employee? न्यू कंपनी है, बिल्कुल 2-3 महीने हुए हैं। कोई बोल रहा है नहीं, कोई यस बोल रहा है, कोई बोल रहा है 3 साल का फाइनेंशियल लगते हैं। He has to show profit. Most of them are saying no. Some of them are saying yes also. Okay, so let's see आंसर क्या है इसका। नो, एज पर अंडरराइटिंग गाइडलाइन लास्ट 2 years फिनेंशियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं फ्रेंड्स। तो न्यू कंपनी जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी नहीं ले सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ अगर 1 साल का भी फिनेंशियल है, इफ यू आर हैविंग 1 year फिनेंशियल एंड रेशमा अगर नेक्स्ट ईयर का हम प्रोविजनल कर देते हैं फिनेंशियल, तो ऑन अप्रूवल बेसिस, केस टू केस बेसिस वी कैन गिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी। बट एटलीस्ट 1 साल का फिनेंशियल हमें डॉक्यूमेंट पर्पज के लिए लगता है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे कंपनी में एएमएल गाइडलाइन बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं। तो अगर आप 1 साल का भी डॉक्यूमेंट नहीं दोगे, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं दोगे, तो पॉलिसी कैसे होगी आपकी? तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट और रूल तो ये कहता है कि 2 साल का चाहिए, बट आप 1 साल का देके 1 साल का प्रोविजनल देके आप इसको कर सकते हो। राइट, बिल्कुल। अच्छा दर्शन, मनु कपूर ने ये पूछा है कि भाई असाइन अगर आपने पॉलिसी कर ली तो क्या इज असाइनमेंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी? तो मैं आपको इसका फिर से स्टोरी फॉर्मेट में बताती हूँ। देखो, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी यू आर डूइंग, दैट टाइम देयर इज एन एम्प्लॉयर and there is a life to be insured and there is a third party called income tax. Okay, so you know, अब मेरे हाथ fingers दूर दूर नहीं हो सकते, so you consider income tax and life to be insured like this. Okay, so this is the company who's the proposer, ultimate withdraw करने का, सरेंडर करने का अधिकार इसको है, ये कंपनी है एब्सोल्युटली सुप्रीम इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एक हो गई तुम्हारी इनकम टैक्स अथॉरिटी और एक हो गया तुम्हारा L2BI। नाउ व्हाटएवर withdrawal, surrender, premium payment, what to do in the policy, the rights is always with the company only. Okay, now it is not a tax evasion method, neither it is a tax avoidance method. It is only delay of tax. We are only deferring the tax, so whoever gets the money back, so this income tax guy is very happy, he wants only tax, he doesn't want anything else, he wants tax. So he is saying either this guy gives, you know, which is the L2BI, or this guy gives, which is the proposal. दोनों में से कोई भी एक दो देना जरूर है भैया टैक्स। अगर तुम लॉस में हो तो तुम टैक्स मत दो, दोनों यू नो दोनों डाउन, नो प्रॉब्लम, इनकम टैक्स को कुछ नहीं मिलेगा अगर दोनों की यू नो लॉस में है। कौन दोनों लॉस में है? अगर एम्प्लॉयर लॉस में है तो कुछ देना ही नहीं है। अगर एम्प्लॉई असाइन करा लेता है पॉलिसी, हाँ पॉलिसी असाइन कर ली और पॉलिसी असाइन करने के बाद वो जिंदा है और वो ठीक कर रहा है सब कुछ, he has to pay the money, he has to pay the tax amount for sure. It's not a tax avoidance method. तो जब आप पॉलिसी लेते हो तो कंपनी को जो है यू नो टैक्स का फायदा मिल गया। सिद्धार्थ जी, आप ये ड्राइंग मत बनाइए इस पे सिद्धार्थ, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ड्राइंग को। सो हम ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये टैक्स अवॉइडेंस मेथड नहीं, किसी दो पार्टी में से किसी न किसी पार्टी को टैक्स देना है, या तो एम्प्लॉयर को देना है या तो L2BI को देना है। इनकम टैक्स वांट्स टैक्स, तो दोनों में से एक को टैक्स देना पड़ेगा। असाइन करते ही टैक्स नहीं देना है कंपनी को। कंपनी ने पॉलिसी असाइन कर दिया, आगे ही इज नॉट पेइंग एनी टैक्स। नाउ इट इज द लायबिलिटी ऑफ रेशमा मेहंदीरता हु वाज द L2BI in this employer-employee policy. It has come to me. Max has given me that 1 crore after, you know, the maturity of the policy. मतलब पॉलिसी हो गई 5-6-7 साल हो गए, अब मैक्स लाइफ ने मुझे पॉलिसी आगे असाइन कर दी। Now they'll give me the policy. I have to pay the tax. Max Life Insurance will pay no tax. They took the benefit of the tax. They deferred their tax. They took the benefit. हर साल जब तक प्रीमियम दिया, they kept taking that income tax benefit.
when the money came into my account, they have to pay no tax on assignment. They are free now. Now I am liable to pay tax, and if I die, then I don't have to pay tax because my family members will once again get the the money on maturity. Yeah, go ahead, Darshan. Yeah. Next question. What document constitutes KYC for a private or public limited company? एक प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लीजिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ दी हमारी केसेस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को देते हैं. तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी की मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी केसेस हमारे रेशमा प्राइवेट कंपनीज को जाते हैं, राइट. तो केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या लगता है उनके लिए? इंडिविजुअल के लिए तो केवाईसी होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका फोटो, राइट. क्या कंपनी के लिए क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट होगा? पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट कोई दे रहा है? आईटीआर केवाईसी डॉक्यूमेंट में आएगा? कोई बोल रहा है एमओए, ओए, बोर्ड रिजोल्यूशन. अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट आ गए यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के. आई एम आस्किंग ओनली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, नॉट फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स 2 साल के लगते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया पहले वाले क्वेश्चन में. 2 साल के फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या लगते हैं मैं पहले आपको बताता हूँ. फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में वी नीड कंपनीज आईटीआर along with computation and profit and loss account, balance sheet and audit report. Bank statement also on a case to case basis, right? तो ये financial document हो गए. अब आपको बताना है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या लगता है. अरे आई थिंक स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया क्या रेशमा? हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया. Let me share again. अच्छा, चलो ये आंसर भी दिख गया आप लोगों को, आप देख सकते हो ये आंसर यहाँ पे. या रेशमा ये विजिबल है स्क्रीन? आप कंफर्म करोगे एक बार? हाँ, बिल्कुल विजिबल है जी. On which question रेशमा? There are 24 question. हम कौन से क्वेश्चन पे थे रेशमा? मैं बताती हूँ आप चलो आगे. ये सारे कवर हो गए. अच्छा, we are on 20th. 20th, हाँ 20th. या सो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पूछ रहा था फ्रेंड. फिनेंशियल डॉक्यूमेंट रेशमा मैंने ऑलरेडी बता दिए. वी रिक्वायर्ड क्या हमें फिनेंशियल डॉक्यूमेंट लगते हैं. केवाईसी डॉक्यूमेंट में नीड कंपनीज डॉक्यूमेंट. सो कंपनी हैज अ पैन, private company, it has a certificate of incorporation, it has a memorandum of association, it has an article of association. तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से लेने हैं. यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको क्या लेना है केवाईसी के लिए? पैन कार्ड तो लेना ही है. उसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का उनका डीड होता है, पार्टनरशिप डीड होता है, तो वो आपको लेना है. अगर एलएलपी है तो एलएलपी का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होता है, वो आपको लेना है अलॉन्ग विद पैन कार्ड. अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अप्रोच कर रहे हो तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पैन कार्ड भी प्रोप्राइटर का होगा. तो उस केस में आप कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, या अगर वो फूड एंड ड्रग लाइसेंस उनके पास है, या कोई भी गवर्नमेंट इश्यूड एमएसएमई का उनके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस आप एज अ केवाईसी दे सकते हो फॉर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म. बिकॉज प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता. पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड, एलएलपी के लिए एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, और प्राइवेट कंपनीज के लिए मैंने ऑलरेडी बताया स्क्रीन पे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये 4 डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के पास से क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? If I am an employee, what documents I have to give to take the policy? Yes, you can answer this question, friends.
in chat. Salary slip. I know it may be tiring for some of them. Both लोग सोच रहे 2 घंटे से, but only few questions we are left, and I hope आप लोगों को ये मजा आया होगा, ये समझ में आई होगी चीजें. What do you say, रेशमा? Yeah, it is a good format. Yeah, it's a very good format. इसको थोड़े क्विक हम चाहे तो कर लेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे. Yeah. ओके, तो क्विकली इसका आंसर मैं बताता हूँ. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सैलरी स्लिप लिखा हुआ है एंड पैन कार्ड लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग लेटर किसने लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं मैं आपको आंसर में बताता हूँ. आपको सैलरी स्लिप देना है, फॉर्म 16 देना है, आईटीआर हैविंग सैलरी इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न. आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट शोइंग सैलरी स्लिप, सैलरी क्रेडिट, ये आप दे सकते हैं. इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हो. फॉर्म 16 अगर आपके पास है वो दे सकते हो. आईटीआर शोइंग सैलरी इनकम आप दे सकते हो. बैंक स्टेटमेंट आप जरूर दे देना. बैंक स्टेटमेंट अंडर राइटर जो है हमारे रेशमा हमेशा पूछते हैं, तो आप बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ कोई भी अदर एक डॉक्यूमेंट आप दे देना. अगर आप बैंक स्टेटमेंट के साथ एम्प्लॉय का बैंक स्टेटमेंट में ये कह रहा हूँ जिसमें सैलरी आती है, वो लास्ट 6 मंथ्स का आप दे सकते हो बैंक स्टेटमेंट. अलॉन्ग विद दैट you can give salary slip. If salary slip is not there, you can give form 16. फॉर्म 16 भी नहीं है अगर, तो आईटीआर आप दे सकते हो लास्ट ईयर का जिसमें सैलरी इनकम दिख रहा है, राइट. आई थिंक इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर आपके पास होता है. अपॉइंटमेंट लेटर भी हम केस टू केस बेसिस पे कंसीडर करते हैं अगर बाय एनी एक्सेप्शनल रीजन अगर नहीं है. बट बैंक स्टेटमेंट आपको हमारे अंडर राइटर जो है मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछते हैं, तो एम्प्लॉय का बैंक स्टेटमेंट आप मंगा लें. स्पेशली जब आप डायरेक्टर या फैमिली मेंबर्स को पॉलिसी देते हो तब ये बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है टू प्रूव दैट ये सैलरी कंटिन्यू आ रही है आज भी, राइट. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट, इफ एम्प्लॉय इज एनआरआई कैन ही बी लाइफ टू बी इंश्योर्ड ऑफ दिस पॉलिसी. सो हमारे एनआरआई बीडीएम्स के लिए ये क्वेश्चन भी हो सकता है रेशमा, तो अगर कोई कॉल पे तो वो आंसर कर सकते हैं. कैन एनआरआई be a life to be insured of a employer-employee policy? आपको आंसर करना है फ्रेंड्स, yes और no में. Employees NRI, can he become a life to be insured? बहुत सारे लोग yes लिख रहे हैं, कोई लोग no लिख रहे हैं. If he gets salary, yes, सैलरी तो मिल रही है, सैलरी मिल रही है उसको, बट क्या वो लाइफ टू बी इंश्योर्ड बन सकता है क्योंकि वो NRI है? Most of them are saying yes, कुछ लोग no कह रहे हैं. So let me answer this. Yes, इसका आंसर है NRI can be a life to be insured of a employer-employee policy. There is no restriction that only an Indian resident can be a life to be insured. Next question जो आएगा रेशमा, I think ये क्लियर कर देगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका इस क्वेश्चन के बाद दूंगा. 22 क्वेश्चन. Can a foreign company take employer-employee policy on a Indian or NRI employees? 23 क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हो स्क्रीन पे फ्रेंड्स. Can a foreign company, मतलब जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन कंपनी का मतलब यहाँ पे आउटसाइड इंडिया आप लिख सकते हो, समझ सकते हो. जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है, क्या वो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय पॉलिसी ले सकती है इंडिया में काम करने वाले एम्प्लॉय में, या एनआरआई एम्प्लॉय जो बाहर है उसी देश में वो एम्प्लॉय है, क्या उनके नाम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दी जा सकती है? हो सकता है कोई डायरेक्टर आपको मिले, वो कहे कि मेरी कंपनी जो है वो फॉरेन में है, इंडिया में नहीं है. क्या आप उस डायरेक्टर को उस फॉरेन की कंपनी से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दे सकते हो? आंसर इज नो. इसका आंसर नो है. अब ये 22 और 23 दोनों का डिटेल में आंसर बताता हूँ रेशमा. फर्स्ट, एनआरआई पॉलिसी तब ले सकता है रेशमा जब कंपनी जो है वो इंडिया में हो, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड, राइट. मतलब अगर इंडिया में कोई पार्टनरशिप फर्म हो रजिस्टर्ड, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो, या प्रोप्राइटरशिप हो, इंडिया में लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड,
तो आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी दे सकते हो, भले आपका एम्प्लॉय इंडिया में हो या एनआरआई हो। क्लियर है? बट अगर कंपनी आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में आपका कंपनी नहीं है, आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, ना ही लोकेटेड है, देन आप उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी नहीं दे सकते, इवन आपका एम्प्लॉय इंडिया में हो या एनआरआई हो। राइट? सो आपको ये देखना है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पर है, इंडिया में है या बाहर है। अगर इंडिया में है, इंडियन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ट्रस्ट भी है प्रॉफिट मेकिंग, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है इंडिया में, इंडियन पैन कार्ड है, इंडियन सारे डॉक्यूमेंट है, तो आप दे सकते हो। लेकिन फॉरेन कंपनी है, इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, तो आप नहीं दे सकते। राइट? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑन अंडरराइटिंग। व्हाट इज द अंडरराइटिंग गाइडलाइन और रूल टू डिसाइड द मैक्सिमम प्रीमियम अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी? बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रेशमा आपने सब पूरा समझा दिया डायरेक्टर को, अब डायरेक्टर पूछ रहे हैं मैं कितना मैक्सिमम प्रीमियम ले सकता हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा आपको आ सकता है। सो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आप कितना प्रीमियम दे सकते हो जो डायरेक्टर सामने बैठा है उसको। ओके, इसकी कोई लिमिट है या लिमिट नहीं है? 5 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है नो लिमिट, कोई बोल रहा है नॉट मोर देन सैलरी विड्रॉ, 30% ऑफ प्रॉफिट। प्रेम प्रहलाद जी कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रेम जिंदाल जी कह रहे हैं क्या परसेंटेज? डायरेक्टर तो क्लियरली पूछेगा कितना मैक्सिमम प्रीमियम में दे सकता हो, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं कह सकते। कितना परसेंटेज, कौन से परसेंटेज? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके, बेस्ड ऑन टर्नओवर। ओके, कोई कह रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है रेशमा, अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। अंडरराइटिंग पे एक ही अंडरराइटिंग है यहाँ पे फ्रेंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जो प्रीमियम डिसाइड करती है। सिंपल अंडरराइटिंग आपको याद रखना है, अप टू दी मैक्सिमम प्रीमियम कैन गो अप टू दी 100% ऑफ एनुअल सैलरी। जितनी सालाना सैलरी है एम्प्लॉय की या डायरेक्टर की, वहां तक आप प्रीमियम दे सकते हो। कोई इसमें टर्नओवर या कंपनी का परसेंटेज प्रॉफिट देखने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है जो डायरेक्टर सामने बैठा है, सर और मैडम आपकी सालाना सैलरी कितनी है, आप कितना रेम्यूनरेशन लेते हो इस कंपनी से ईयरली, और कितनी सैलरी लेते हो ईयरली? तो बताएगा मैं 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख सैलरी लेता हूँ, तो उतना तक मैक्सिमम आप प्रीमियम दे सकते हो। यहाँ पर एक चीज और देखनी है रेशमा की, कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए, नॉट ओनली रेम्यूनरेशन, यस प्रॉफिट भी उतना होना चाहिए। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तभी उतना रेम्यूनरेशन कंपनी देगी। बट आंसर करने के लिए क्वेश्चन रूल है अंडरराइटिंग का कि 100% ऑफ एनुअल सैलरी, हम जो है सैलरी का 100% तक, एनुअल सीटीसी जो जिसको आप बोलते हैं, तब तक का प्रीमियम दे सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टर कम सैलरी ले रहा है 5 लाख का पर एनम का, तो उसको हम 5 लाख तक का मैक्सिमम प्रीमियम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। राइट? तो इट कैन बी ईदर इक्वल टू और लेस देन दी एनुअल सैलरी। राइट? Okay, I think Reshma, we have covered all the questions 24 which I made. Sure. So let's ask them. Are there more questions in the chat? Are there more questions? और कोई सवाल है क्या, friends? जो आप डिस्कस करना चाहोगे? कोई can be discuss scheme B also? मनु कपूर बोल रहे हैं, but scheme B में तो मेरे ख्याल से पूरे अगर मैक्स में देखो तो 1% भी बिजनेस नहीं आता मनु, 1% भी बिजनेस नहीं आता। तो इफ यू स्टिल वांट स्कीम बी, यू कांटेक्ट दर्शन। आता ही नहीं है उसमें बिजनेस, मतलब जब से पिछले 3 महीने से एक भी पॉलिसी नहीं आई है स्कीम बी में, तो फॉरगेट अबाउट स्कीम बी। जो आता ही नहीं है उसमें कोई बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर किसको फिर भी चाहिए तो प्लीज आप लोग दर्शन को कांटेक्ट करिए। ओके, चैट में देखो जरा दर्शन, और सवाल आ रहे हैं। इज इट डॉक्यूमेंट फॉर एलएलपी? या डॉक्यूमेंट फॉर एलएलपी, डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको आपके ऑपरेशन टीम से मिल जाएगा। आपका काम है प्रोस्पेक्टिंग करके एजेंट से बात करवाना। मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट। बाकी के डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैक्स लाइफ के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे बोर्ड रिजोल्यूशन, वो तो कंपनी का होता है खैर, बट केवाईसी डॉक्यूमेंट या फिर रूल्स ऑफ द स्कीम,
ये सारे मैक्स लैब के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल एंटिटी एडेंडम। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडीली मिल जाएंगे, इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। मेन फिनेंशियल डॉक्यूमेंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट ये कस्टमर से मांगने होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अगेन मैं रिपीट करता हूँ सबके लिए, अगर आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाती है, आई एम श्योर हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको फिनेंशियल और केवाईसी डॉक्यूमेंट मंगाने, कंपनी के भी और डायरेक्टर के भी। कंपनी के फिनेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आईटीआर, ये मंगाना है। और उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंने बताया, मेमोरेंडम एसोसिएशन, सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, ये सारे पैन कार्ड ये मंगाने हैं। और एम्प्लॉय के आपको फिनेंशियल और केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने हैं। एम्प्लॉय का पैन, आधार, फोटो, और उसके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट में उसका सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट लेने हैं। ओके, और क्वेश्चंस में देखता हूँ। प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने बताया प्रीमियम कैन मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सैलरी। प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की देखी जाती है। मैं एक सिंपल चीज है, देखो, अगर मैं आपके कंपनी में आता हूँ, आपकी कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया एग्जाम्पल, क्या आप 1 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे कर पाओगे? क्या नहीं ना, यू कैन मैक्सिमम पे 50,000। सो प्रॉफिट केवल अंडरराइटिंग देखती है, बट प्रीमियम डिसाइड करता है रेशमा की एनुअल सैलरी कितनी है एम्प्लॉय, राइट? तो प्रॉफिट परसेंटेज से इसको कंफ्यूज मत कीजिए। कोई किसने लिखा था 5 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये की मैन के लिए कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। जब हम की मैन करेंगे तब हम डिटेल में समझाएंगे कि की मैन के लिए किस तरीके से सम एश्योर्ड डिसाइड होता है। 5 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट इज द कैलकुलेशन ऑफ सम एश्योर्ड फॉर द की मैन, राइट? Okay, good. I think most of the questions I answered live to be. अगर आपके क्वेश्चन में आंसर नहीं किए फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। राजेश्वरी जी का क्वेश्चन में देख रहा हूँ, मिनिमम सैलरी सपोज 15,000 पर मंथ, कैन वी गिव? सी, हमारे प्रोडक्ट इसमें अलग नहीं है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट जो हमारे वो सेम प्रोडक्ट है, सो हमारे प्रोडक्ट में कितना मिनिमम प्रीमियम लगता है आपको तो मुझसे ज्यादा आपको मालूम है हमारे प्रोडक्ट में मिनिमम कितना प्रीमियम लगता है। सो उतना प्रीमियम आप दे सकते हो, राइट? 15,000 से स्टार्ट होता है प्रीमियम। कुछ प्रोडक्ट के लिए 50,000 है, कोई प्रोडक्ट के लिए 1 लाख भी है। सो जितना प्रोडक्ट का प्रीमियम है उतना आप दे सकते हो, कोई सैलरी मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है। टर्म प्लान में आपको मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है 5 लाख की, 2.5 लाख की, बट नॉन टर्म में कोई सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना प्रोडक्ट है उतना आप गाइडलाइन के अनुसार दे सकते हो। हाँ, आप 2,000 प्रीमियम नहीं दे सकते, क्योंकि 2,000 में अपना प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। मिनिमम प्रीमियम की रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी। ओके, अदर क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन व्हेन एम्प्लॉय लीव्स? एम्प्लॉय छोड़ने पे कोई पैसा आता या जाता नहीं है। एम्प्लॉय छोड़ने के बाद आप असाइनमेंट करते हो, जैसे मैंने बताया, उसके टैक्स इम्प्लीकेशन रेशमा ने बताए। और एम्प्लॉय छोड़ने के बाद अगर असाइन नहीं हुआ पॉलिसी, तो कंपनी को जाएगा। कंपनी के टैक्स इम्प्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बताए कि क्या होते हैं। ओके, एक्स ग्रेशिया क्या है? एक्स ग्रेशिया इज लाइक अ डेथ कंपेंसेशन, दिव्या भारती जी। तो ये आप डेथ के टाइम पे आप अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। Okay, good. I think most of the questions are answered, Reshma. Now I think we have covered, tried to answer all the questions. It's been 1 hour, 2 hour, 15 minutes. So Yeah, what I would suggest is, if you are still having question, you can stay. I will be staying for next 10 minutes on this call. If you have no other questions, and if you like, तो मैं and if कहती you हूँ wish, नहीं, मैं तो कहती हूँ दर्शन, नाउ लेट्स नॉट टेक एनी मोर क्वेश्चंस। माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज प्लीज ओपन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉल्स। जिसके पास फॉर्म 16 होगा, फॉर्म 16, the person who has profit in his books of account. So 3-4 things. One, the person who has profit in the books of account. Two, somebody who has form 16 or ITR. And third, you can collect such person's name. So these 3 things, and approachable hona chahiye, obviously. So if you can approach, if he has profit in his books of accounts, and if he has a form 16 and ITR, then you are free to go and approach him and talk about employer-employee friends. So my request to all of you is please open employer-employee calls, because
today's idea was to give you an idea कि employer-employee है क्या. We covered all the questions so that there is a different format and you guys don't get bored. Next time we will share with you the pitches. This time we told you the questions. We will दर्शन मुझे वो questions आप मुझे PDF format में भेज दीजिए, मैं सबको भेज दूंगी आगे. और so my request to all of you is please ensure कि आप sales calls खोलो. Unless and until you open sales calls, nothing is going to move. And you have seen people picking up 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 2 crore 35 lakh only with employer-employee concept. So thank you everyone for joining in. Have a fantastic weekend. By approaching your customers, Saturday, Sundays are our best days to do business. So approach your customers. And आज जो हमने आपको employer-employee concept बताया, please ensure कि आप at least 4-5 customers को ये बताओ. इस कॉल पे जो भी लेडी है या जो भी my male friends are there, अगर आपको एक महीने में 10 लाख रुपए कमाना है, only in one single month if you want to earn 10 lakhs, employer-employee is the answer to your to your goal of that kind of an earning. So my request to all of you is please ensure that you open employer-employee calls and जैसे लोग कहते हैं ना, only they are lucky who work more. The probability of success increases if you work more. Natural है ना. 50 कॉल खोलोगे एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय के जुलाई, अगस्त, सितंबर में, पक्का फैमिली को लेके थाईलैंड में होंगे आप. अकेले क्यों जाओगे भाई? पूरी फैमिली को लेके जाना ना, with the kind of earning that you will have. So my request is please open calls. आपको आज सवालों के आंसर मिल गए. Next time in the month of August we will bring forward sales pitches only. तो next time दर्शन हम इनको brief overview and 2 sales concept ऐसे करके तोड़ के देंगे. हमारा इनको कंटेंट सारा इकट्ठा देके कोई फायदा नहीं होता. So thank you everyone for joining in. And Shweta, please save the chat. Shweta, mail me the chat. Shweta, you're there? Yeah, ma'am. I'm there. I'll do Shweta, give me the recording and give me the chat both. Huh? Yeah, ma'am. I'll do that. Thank you everybody. And we have, we have the NRI session. Darshan, वो NRI session का भी डाल दो Zoom ID and this, so that people can join us next week. So thank you everyone. एक minute. Surely. Reshma, I am putting the Zoom ID in the chat. Thank you very much everyone for joining in. You will get the Zoom ID also in your group message where you got this email ID, this message. But let me type the Zoom ID for Thursday's call. It is on Thursday at 11 in the morning for English, and it is also repeat on 4 p.m. on Thursday in English. In Hindi, 4 p.m. is Hindi, 11 a.m. is English.